Very warm greetings to you all, dear students. In the last video, we tried to understand how we can write the number in expanded form. In the same video, I talked about the short form also. And in that video, we tried to understand how we can write the number in expanded form. Today we are going to learn how we can write the expanded number in a original form or in a short form. Dear students, you might have known that writing number in a expanded form is so easy. In the same way, writing number in a short form is also easy. It require just your conceptual understanding. It's require your basic understanding. Once you understand the concept, you will be in position to solve any type of question from short form or the expanded form. Okay, so without wasting time, we will directly start our topic. So let's begin. Today's topic will start from very simple number. So now for first example, I am giving the one number is 600 plus 50 plus 7. Dear students, after looking at the number, we can simply understood that this number is in expanded form, isn't it? This number is not it's in original form. This is in expanded form. Now this number is given in expanded form, and now they are asking you to write this number in a short form. So how we can write the expanded number in a short form? Dear student, there are two ways or there are two methods which we can use to write the expanded number in a short form. Now try to understand the first method. The first method is very simple and you may be aware about that. You have to add this number to get its original number. How you can add? Now look at the blackboard. This is 600. So I will write here 600. Again plus there is 50. So I will write 50 over here. All number which I have to do, I have to add this all number. Then after 50 there is 7. So I have written 7 over here. And what I have to do, I have to simply add these three numbers. After adding these numbers, we can add this number 0, 0 plus 7, it means only 7. 0, 5, it means 5. And 6, there is no digit. So here only 6. Now you got this number 657. This is nothing but the short form of this number. This is the original form of this number. This is the one way which you can use to write the expanded number into the short form. Now I am going to tell you the another method which you can use to write this number into the short form. Now see, in this method, what you have to do? You have to simply read or look at the number which is highest in place value. इस नंबर में आपको ये देखना है कौन सा नंबर हाईएस्ट है, which is the biggest number. Yes, simply you can see here is the 600 is the biggest number, isn't it? The 600 is the biggest number. Now after identifying the biggest number, what we have to do? We have to count the digits which is in the highest number. Here you can count 0, 0 and 6. There are 3 digits. कितने डिजिट्स हैं? देखो मैंने क्या बोला कि ये तो मेथड ये थी कि हमने सबने ऐड कर दिए सभी डिजिट्स को, तो हमें ये नंबर मिला 657. नाउ वी हैव द अनदर मेथड.
इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से दूसरे मेथड से भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस मेथड में हमें क्या करना है, इस मेथड में हमें ये करना है कि जो नंबर दिए होंगे whatever number it is no problem, हमें करना है we need to find the highest number. Now in this case the 600 is the highest number. ये जो 600 है ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। जब हमने इस नंबर को आइडेंटिफाई कर दिया कि जो गिवन नंबर है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो जब हम आइडेंटिफाई कर देते हैं तो हमारा दूसरा काम चालू हो जाता है। उसके बाद हमें करना है उसके अंदर कितने डिजिट है वो काउंट करना होता है। अब 600 में मैंने काउंट किया, ये पहला डिजिट, दिस इज सेकेंड डिजिट एंड दिस इज थर्ड डिजिट। कितना डिजिट है, 3 डिजिट्स है। तो मैं यहां क्या करूंगा, 3 प्लेस के लिए मार्क लगाऊंगा। देखो जितने डिजिट हाईएस्ट प्लेस नंबर में है उतने मैंने यहाँ पे प्लेस लगा दिए, यहाँ पे मैंने लाइन को मार्क कर दिया। अब हमारा काम क्या है, देखो अब हमें सिंपली क्या करना है, डिजिट को काउंट करते जाना है। ये होगा पहला प्लेस, ये होगा दूसरा प्लेस और ये होगा तीसरा प्लेस, दिस विल बी थर्ड प्लेस। अब डिजिट को काउंट करते जाना है। देखो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3, तो ये 6 जो है वो थर्ड प्लेस पर आएगा। गॉट इट। ये होने के बाद आपको यहां काउंट करना है, इसमें कितने डिजिट है, 1 2, तो ये फिफ्थ का जो प्लेस होगा वो होगा सेकेंड। अब इसमें कितने प्लेस है, इसमें कितने डिजिट है, देयर इज ओनली 7 सिंगल डिजिट, so the place of this 7 will be here. Now you can see the answer by using this method, and answer we got by using this method is same, 657 and 657. Okay, this is little bit complicated method, but once you understand the concept it is very easy to solve. ये आपको शुरुआत में इनिशियली इट विल यू फील दिस मेथड इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आसान है, दिस मेथड एडिंग द नंबर इज वेरी सिंपल, लेकिन ये भी इक्वली आसान है, इक्वली सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। अब बड़ा एग्जाम्पल कैसे लेंगे, चलो हम लेते हैं 60,000 प्लस 900 प्लस 9,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 7, 60 प्लस 7, दिस इज आवर न्यू नंबर। अब पहली मेथड ये है कि आपको ऐड कर सकते हो सभी नंबर्स को, उसको भी हम कर लेते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली ऐड करना है, 6,0,0,0,0 प्लस 9,000,1,2,3 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 7। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा नंबर क्या आएगा, और यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि आपको नीचे वाला दिखाई दे सकेगा, तो मैं उसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इस 60,000 में यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। चल देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने 60,000 प्लस 9,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 7, ये सभी डिजिट्स हैं। देखो आपको इसमें ध्यान रखना है द वे ऑफ पुटिंग द नंबर्स, मैंने नंबर्स को कैसे पुट किया। यूनिट प्लेस के नीचे सभी यूनिट प्लेस आएंगे, 10 प्लेस के नीचे सभी 10 प्लेस आएंगे, 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस आएंगे, 1000 प्लेस के नीचे 1000 प्लेस आएंगे, और 10,000 प्लेस के नीचे 10,000 प्लेस आएंगे। अगर इधर कुछ गड़बड़ हो गई, आपने इधर का नंबर मिसप्लेस कर दिया, इधर का उधर कर दिया, तो योर आंसर विल सर्टेनली गो रॉन्ग, ये जरूर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको इसमें ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है
कि आपको प्लेस के नीचे जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस के नीचे सभी डिजिट्स के यूनिट प्लेस आने जरूरी है। 10 प्लेस में सभी डिजिट के, सभी नंबर्स के 10 प्लेस आना जरूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अब हम सिंपली इसको ऐड करते हैं। 0 + 0 + 0 + 0 + 7 means only 7. 0 + 0 + 0 + 6 means 6. 0 + 0 + 4 means 4. 0 + 9 means 9. And there is no digit in this column, so 6. Now what is our number? Our number is 69,467. This is our new number. Okay, so I am going to erase this number here and I am writing this number over here. 69,400. Now coming to the second method. अब मैं ये जो 60,000 ऊपर लिखा था इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। 1 2 3। अब हम सेकेंड मेथड में क्या करते हैं? सेकेंड मेथड में मैंने जैसे आपको बताया था कि सेकेंड मेथड में हम पहला काम ये करते हैं कि वी फाइंड द हाईएस्ट नंबर। इसमें जितने भी नंबर दिए गए हैं इनमें से हम हाईएस्ट नंबर को हम फाइंड करते हैं। और सिंपल से मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जो भी इस साइड रहेगा नंबर वो सबसे बड़ा रहेगा, इस साइड वाला नहीं। ये तो आप देख रहे हो, यहाँ 7 है, यहाँ 60 है, 400 है, यहाँ 1000 है और ये 10,000। जो भी सबसे लास्ट नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। गॉट इट? अब ये करने के बाद हमें क्या करना है? जो सबसे बड़ा नंबर है वी नीड टू काउंट द डिजिट्स। हमें इसके डिजिट्स को काउंट करना है। अब डिजिट कैसे काउंट करेंगे? तो देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने डिजिट है? 5। तो जब मैं काउंट कर लूंगा डिजिट्स को तो मैं यहाँ पे 5 प्लेस के लिए मार्क लगा दूंगा। 1 2 3 4 5। समझ में आया मैंने क्या किया? अब मुझे क्या करना है? ये काम होने के बाद सिर्फ मुझे अभी इस नंबर में कितने डिजिट है ये काउंट करना है, इस नंबर में कितने डिजिट है ये काउंट करना है, इस नंबर में कितने डिजिट है ये काउंट करना है, इस नंबर में कितने डिजिट है वो काउंट करना है, इस नंबर में कितने डिजिट है वो काउंट करना है। अब देखो मैं वो कर रहा हूं, इस नंबर में कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। यहां मैं ये भी लिख देता, ये पहला प्लेस होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा और ये फिफ्थ होगा। ठीक है। अब 60,000 में 5 डिजिट है, सो ये जो 6 है इसका जो प्लेस होगा वो होगा फिफ्थ प्लेस। Got it? Now here you can see in this 9,000 there is only 4 digits, so the place of 9 will be 4th। जो 9 का प्लेस होगा वो होगा 4, क्योंकि इस 9 में ओनली 4 डिजिट्स है। Now here in 400 you can see there is only 3 digits, so the place of this 4 will be 3rd। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। Now here in case of 60 you can see there is only 2 digits, so the place of 6 will be 2nd, and in case of 7 you can see 7 is the single digit, so the place of this 7 is 1st। Now after writing in such way we got the new number. The new number is 69467. Now you can tally this answer with this answer, 69,467 and 69,467. The both answer are same. So these are the two methods which you can apply in your question in order to get the short form of the expanded number. अब इसमें थोड़ी दिक्कत कहाँ आती है? जब हम वेरियस मेथड का यूज करके इस प्रकार से हम इसको एक्सपेंड नहीं करते, दूसरे प्रकार से हम एक्सपेंड करते हैं, उसको मैं अभी एक एग्जांपल आपको देता हूं, उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा, तो उसको भी हम अभी देखते हैं। अब ये जो केस है
ये जो अभी हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं ये थोड़ा अलग टाइप का होगा। अब आपको क्या दिया गया है ये देखिए। अब आपको दिया गया है 12 लाख 12 लाख दिया गया है। अब शॉर्ट फॉर्म की बात छोड़ दो, हम अभी 12 लाख पर फोकस करेंगे। ये अपना एक केस स्टडी है, दिस इज आवर केस स्टडी। अब 12 lakh, that 12 lakh is given and they are asking you to expand this number. आपको एक्सपेंड करने के लिए दिया गया है, ठीक है। नाउ यू कैन एक्सपेंड दिस नंबर बाय यूजिंग वेरियस वे, बाय यूजिंग various method you can expand this number. How we can expand this number? Okay, I can expand this number. First of all, I have right to write this 12 lakh into the numbers. How I can write this? I know in Indian system 100, 10 and ones will make one group, then 1000, 10,000 will make next group, then 1000, 10,000, then lakh and 10 lakh will another group. This is 1000 and this is lakh. This comma will read as a lakh and this comma will read as a 1000. Now in lakh, how many? 12. And here we simply put 0, 0, 0, 0. Now after writing in such manner, we got the new number. New number is nothing but the 12 lakh. 1, 2, 1, 2, 3. Isn't it? This is the 12 lakh. Now you can expand this number. One way is 1 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 2, 0, 0, 0, 0, 0. This is the one way which you can expand this number. अब कोई दूसरा बच्चा बोलेगा सर मैं अलग तरीके से इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, कैसे एक्सपेंड कर पाएगा वो? देखो 7 lakh plus 5 lakh, this is also correct. 7 lakh plus 5 lakh, it means 12 lakh, no problem. Some other student may use the other method or the variation in writing this number in an expanded form. Some may use like this 8 lakh plus 2 lakh plus 2 lakh. This is also correct. 8 lakh plus 2 lakh means 10 lakh. 10 lakh plus 2 lakh means 12 lakh. This is also correct. So in this case, whenever they ask you to write the numbers in a short form, we need to be extra caution, we need to be extra aware. Why? We are just going to look at the question. अब हम नया एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में वेरियस वे में लिख सकते हैं और उसको कैसे किस प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है 73,500. दिस इज द नंबर विच वी कैन एक्सपेंड इन द वेरियस वे। इसको हम वेरियस वे में लिख सकते हैं। कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? यू कैन एक्सपेंड लाइक दिस 70,000 प्लस 3,000 प्लस 500. दिस इज द वन वे। 70,000 प्लस 3,000 मीन्स 73,000 प्लस 500 मतलब 73,500. अब कोई इसको अलग तरीके से भी लिख सकता है। कोई ये बोलेगा कि सर मैं इस प्रकार से लिखूंगा 73,000 प्लस 500, ये भी हो सकता है। अब देखो इस प्रकार में थोड़ा प्रॉब्लम कब आएगा? जब हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। अगर इस प्रकार से लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
चल देखो अब कैसे किया जा सकता है इस एग्जांपल को। अगर कोई नंबर जो है वो दिया गया है 70,000 प्लस 70,000 3,000 देन 500, ये एक्सपेंड करके आपको दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसको अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। तो आप इसमें दोनों भी मेथड यूज कर सकते हो, एक तो ऐड कर सकते हो सभी डिजिट्स को, और दूसरी जो मैंने आपको बताई थी वो मेथड। तो अब हम ऐड वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड वाले में हम नहीं जाएंगे। अब मैं डायरेक्टली आपको ये जो सेकंड मेथड है इसके बारे में बताता हूँ। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैंने सबसे पहले क्या बोला था, जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसको हमें देखना है, एंड आफ्टर identifying the largest number we have to count the digits which came in this particular number. Here in case of this 70,000 is the largest number, and here you can count there is 5 digits 1 2 3 4 5. So I will just mark 5 line over here 1 2 3 4 5, and this is first place, this is second, this is third, this is fourth, and this is fifth. ये फिफ्थ प्लेस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं डिजिट्स को काउंट करूंगा, इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं, और इसमें कितने डिजिट्स हैं। अब देखते हैं इसमें कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। सो द प्लेस ऑफ दिस 7 विल बी फिफ्थ। Here you can see here is only 1 2 3 4 place, so the place of these 3 will be 4. Here in case of 5 there is 3 digits, so the place of these 5 will be third. अब आपके पास सवाल आ गया कि सर हमने तो ये लिख दिए, अभी हमारे पास ये दो प्लेस अभी ब्लैंक है, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ क्या करोगे। आपका आंसर मुझे लग रहा है रेडी है, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू पुट सिंपली 0 ओवर हियर। So our new number is 73,500. This is our new number. अब उन्होंने क्या किया कि ये सिंपल वे में उन्होंने एक्सपेंड किया था इस नंबर को इस प्रकार से। अगर कोई इसी 73,500 को इसी प्रकार से भी तो कर सकता था, वो 73,000 plus 500. This is the another way which we can expand this number. ऐसे भी कर सकते थे। अब इसमें देखो थोड़ा प्रॉब्लम कहा गया 73 में आएगा, क्यों आएगा, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, which is the biggest number. Biggest number is 73,000, isn't it? Now what we will do, we will just count the digits which is in 73,000. 1 2 3 4 5. So we will mark 5 line over here 1 2 3 4 5. अब इसका होगा ये, दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ प्लेस। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, इनको लिखना है। ये जो डिजिट्स है इन डिजिट्स को यहाँ पे हमें लिखना है, तो इसके लिए हमें इनका प्लेस ढूंढना पड़ेगा कि हम इस 7 को कौन से प्लेस पर लिखेंगे, इस 3 को कौन से प्लेस पर लिखेंगे, इस 5 को कौन से प्लेस पर लिखेंगे, इस प्रकार से हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो हमें सिंपल सा मेथड मैंने क्या बोला था कि आपको डिजिट्स काउंट करना है, जितने डिजिट उस नंबर में होंगे उसका उतना प्लेस होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अब हमें सिर्फ 7 थोड़ी लिखना है, यहाँ पे तो 7 भी है और 3 भी है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें सिंपल सा क्या यूज करना है, इसमें काउंट करना है 1 2 3 4 5। 5 पर कौन सा आया है, 7 आया है, तो 5 पर 7 आएगा, और 4 पर क्या आया है, 3 आया है। जीरो को हमें लिखना नहीं होता है, जीरो को हम छोड़ देंगे, उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे, 7 3 हमने लिख दिया, फिर उसके बाद हमारा जो है वो है 5। और अब हम देखेंगे 5 का जो प्लेस होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि इस 500 में कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, सो 5 का प्लेस विल बी थर्ड, एंड आफ्टर दिस 5 देयर इज नो डिजिट्स, सो वी विल सिंपली पुट दिस 0 तो ओरिजिनल। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 19
90,000 plus 600 plus 5। ये हमारा एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब इसमें हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम एडिशन कर लेंगे सभी की, तो हमारा आ जाएगा, एडिशन करने के बाद क्या आएगा, 90,000 प्लस 600 प्लस 5। 0 0 plus 5 means 5, 0 0 means 0, 0 6 means 6, 0 there is nothing means 0, 9 there is nothing means 9, 90,605. This is the one way. Now the next way is to count the digits of the highest number or of the biggest number. Here in case of this number, the 90,000 is the biggest number. So we will count the digits of the 90,000. In 90,000 there is again 5 digits. So we will mark 5 place over here. 1, 2, 3, 4, 5. This is first place, this is second, this is third, this is fourth and this is fifth place. अब हमें ये 9, 6 और 5 की जगह यहाँ पे हमें ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, इनमें कितने डिजिट्स है वो काउंट करेंगे। अब हमें 9 की जगह इनमें ढूंढनी है। हम क्या करेंगे, इस 90 में कितने डिजिट्स आए हैं उसको देखेंगे। तो 90 में 1 2 3 4 5, सो द प्लेस ऑफ दिस 9 विल बी 5। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 600 है एंड इन 600 देयर इज ओनली 3 डिजिट्स, सो द प्लेस ऑफ दिस 6 विल बी थर्ड। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 600 के बाद डायरेक्टली 5 आया है और 5 में डिजिट्स कितने हैं, ओनली 1 डिजिट, सो द प्लेस ऑफ दिस 5 विल बी 1। अब तो ये अलग प्रकार का नंबर हो गया। 9 है, फिर ब्लैंक है, फिर 6 है, फिर ब्लैंक है, फिर 5 है। अब हम इस केस में क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो ब्लैंक जगह छूट गई है उनमें हमें 0 पुट करना है। 90 then 6 then 0 5, so now we got the new number 90605, 90,605. Now you can tally this answer. Both answers are the same, 90,605, 90,605. In this way you have to deal with the questions of short form. आपको 2-4 बार इसका प्रयास करना पड़ेगा। सिंपल मेथड तो आपको ये है एडिशन वाली, इसमें अगर आपको इस मेथड को आप ज़्यादा डिफिकल्ट समझ रहे हो, इफ यू थिंक दिस मेथड इज टू मच डिफिकल्ट, यू कैन यूज और यू कैन गो थ्रू दिस मेथड ओनली, और यू कैन go through or you can use this method to deal with such kind of question, or you are more interested, you can also try to understand this method. So this both method will help you to solve this kind of question. Okay, so I think you might have understood it in a very well manner. So I am going to give some questions for the homework. So kindly take out your mathematics copy and write the questions for your homework. First question is, write it in short form. Write it in a short form. Now the first question, question number A is 50,000 plus 9,000 plus 300 plus 20 plus 6. This is the first question. Then question number B is 1 lakh
1 lakh plus 5,000 plus 90. Then the third question is 11,000 plus 600 plus 60 plus 6. And your last question is D, question number D, 9,000 plus 900 plus 9. So these are the four questions you have to solve in your mathematics copy as your homework. So I hope आपको जो भी इसमें पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं जब भी हमारा ऑनलाइन क्लास होगा, या मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।